Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your physics teacher Shaban Ali Sheikh. Today we are going to discuss the topic simple harmonic motion of chapter number 8, class first year. In this topic, we will discuss about the definition of simple harmonic motion, the conditions for simple harmonic motion, explanation of simple harmonic motion, derivation of simple harmonic motion, and few important points regarding simple harmonic motion. Dear cadets, note down there is the thing simple harmonic motion, also written as SHM. So we are going to start the simple harmonic motion, its definition. Simple harmonic motion can be described as an oscillatory motion in which the acceleration of the particle at any position is directly proportional to the displacement from the mean position. सिंपल हार्मोनिक मोशन जो डिस्क्राइब किया जाता है जनरली ऑसिलेटरी मोशन के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है. आप जानते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है. ये वो लर्जिशी हरकत होती है जो ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे अपनी मीन पोजीशन पे वो पजेज करता है. तो लर्जिशी हरकत हमेशा मीन पोजीशन से ये स्टार्ट होती है. उसके बाद मीन से ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम तक चला जाता है. एक्सट्रीम के बाद दोबारा वो मीन पोजीशन तक आ जाता है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी डिस्क्राइब किया जाता है ऑसिलेटरी मोशन में. इट इज द स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. ये एक ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस है जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करते हैं. और सेकंड डेफिनेशन of simple harmonic motion, the motion of a particle moving along a straight line with an acceleration whose direction is always towards a fixed point on the line and whose magnitude is proportional to the distance from the fixed point is called simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है. It means the acceleration of the particle is always directed towards the fixed position, fixed point that is called the mean position. Means the acceleration of the object is directly proportional towards the mean position while it is extended to an extreme position that is called the simple harmonic motion. तो वाइब्रेटरी मोशन में भी हमने डिस्कस किया था कि वाइब्रेटरी मोशन मीन पोजीशन की तरफ ही होती है, टुवर्ड्स ही होती है. लेकिन इसमें जो पीरियडिक वेरिएशन होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसकी एक्सलेशन के साथ एक निस्बत बनाती है. तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन एक्सलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन possess simple harmonic motion. There are few conditions for simple harmonic motion. The system must have inertia. सिस्टम में ज़रूरी है कि उसमें इनर्शिया मौजूद हो. द सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स. In this condition, while the object displaced to an extreme position, there must be a restoring force. And in simple harmonic motion, there is a relation which shows acceleration is directly proportional to minus x. X shows the displacement and minus shows the opposite in direction or the displacement of the body always towards the mean position. So हम कह सकते हैं कि वो जो तेजी होती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा मीन पॉइंट की तरफ ही होती है. And number fourth one, the system should be frictionless. As we know that if there is the friction in between the pendulum or the vibratory motion, then the simple harmonic motion cannot be completed. So the system should be frictionless. उसमें कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए. Means उसमें कोई भी opposing force नहीं होनी चाहिए. So these are the four conditions of simple harmonic motion. It means system must have inertia. System should have the restoring force. Acceleration directly proportional to minus x. Minus indicate the direction of the body towards the mean position, and system should be the frictionless. Dear students, now we are going to explain some terms or explanation regarding the simple harmonic motion. हम कुछ explanation, एक experimental demonstration देंगे जिसमें हम
एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट को हम प्रूव भी करेंगे कुछ फैक्टर्स के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो उसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। कंसीडर अ मास m अटैच्ड विद वन एंड ऑफ द स्प्रिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम जो है ना हमने क्रिएट किया हुआ है कि एक स्प्रिंग को अटैच किया हुआ है हमने मास के साथ। तो वो मास अटैच है स्प्रिंग के साथ। द मास m कैन मूव फ्रीली ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये जो सरफेस है इस पे मास m जो है ना बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अपोजिंग फोर्स के फ्रिक्शनलेस ये मूव कर सकता है। तो क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस मूव करेगा तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन पजेज करेगा। सो देयर आर द कंडीशंस, देयर आर फ्यू कंडीशंस व्हाइल द ऑब्जेक्ट आर मास अटैच्ड विद द स्प्रिंग। There are the few positions which are given in the figure, that when mass m is displaced through the distance x from mean position by the force, then अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस मास पे, this is the position of the body as its equilibrium position। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, मास को डिस्प्लेस करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो जाएगा और वो डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ शो किया हमने कि मास पहले मीन पोजीशन पे था, अब वो बी फिगर में डिस्प्लेस हो गया है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट पजेज किए, तो डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एक्स। Now again there is the condition which is given by Robert Hooke by using the Hooke's law. Hooke's law states that F is equal to kx. It means when any force applied to the elastic object that is directly proportional to displacement. So F is equal to kx. Here is the force directly proportional to kx by using the Hooke's law. Due to the elasticity, spring possesses the applied force. This opposing force is called restoring force. जैसे कि हम इसके ऊपर जैसे फोर्स लगाएंगे तो हमारी फोर्स जो होगी वो अप्लाइड फोर्स होगी और वही फोर्स ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड हो जाएगी। और यहाँ पे स्प्रिंग को जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं उसमें एक इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगी। तो वो जो फोर्स स्प्रिंग में सेटअप हो जाएगी हम उस फोर्स को कहते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स। What is elastic restoring force? We are going to describe the force which brings the body back towards its mean position. It is called the elastic restoring force. ऐसी कुवत जो ऑब्जेक्ट को अपनी मीन पोजीशन पर दोबारा ला दे, उसको दोबारा उसी पोजीशन तक खींच ले, उस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ये हमेशा स्प्रिंग में मौजूद होती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं उसकी मीन पोजीशन से। तो द रिस्टोरिंग फोर्स रिप्रेजेंटेड, अब वो रिस्टोरिंग फोर्स जो हुक्स लॉ के मुताबिक है एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। Here negative sign shows that Fr is directed or opposite to x, के means वो जो force है that is opposite towards the displacement, उस displacement के क्या है वो opposite है, तो Fr is equal to minus kx हो जाएगा। which when the mass is released, अब यहाँ पे आपको वो फोर्स लगाने के बाद सिर्फ छोड़ देना है, कोई फोर्स और अप्लाई नहीं करनी है। when the mass is released it begins to oscillate about the equilibrium position as shown in figure. Such type of oscillation are due to the restoring force and inertia। अब वही जो फोर्स जो हमने डिस्प्लेस की है जब हम उसको छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा इन्हीं तीन पॉइंट्स के दरमियान, ए ओ ए के दरमियान, ए डैश ओ डैश ए के दरमियान ये ऑसिलेट करेगा। तो ये जो ऑसिलेशन होती है ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। Now we are going to describe the type of oscillation motion। एक्सप्रेशन हम इसकी डिनोटेड करेंगे F इज इक्वल टू एम ए के साथ। हम F इज इक्वल टू एम ए वही इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F is equal to ma, put the value of ma is equal to minus k into x. So here ma is equal to minus k into x. Here a is equal to minus k upon m upon into x। तो हमने क्या किया, हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है। यहाँ से दो इक्वेशंस को कंपेयर किया है, एक न्यूटन फोर्स की इक्वेशन को, दूसरा जो रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ की इक्वेशन है उसको कंपेयर करने के बाद हमें एक्सेलरेशन जो मिली a is equal to minus k upon m into x। This is the third derivation। Now here is again another condition applied, that
there are two quantities are same, k and m. These are the constant quantities. We can write these constant quantities as equal to minus k upon m, represented here constant, into x. So we can write this relation as a is equal to minus kx. A is directly proportional minus x. It means the acceleration of the body is directly proportional to the displacement which is always towards the mean position. तो इसकी जो तेजी होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगी, चाहे हम इसको कंप्रेशनल कंडीशन पे ले जाएं, चाहे हम इसकी एक्सटेंशन कंडीशन पे ले जाएं, तो इसकी एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। तो ये था हमारा सिर्फ और सिर्फ हुक्स लॉ के थ्रू जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एक्सेलरेशन मालूम करनी थी। जितना हम इसको डिस्प्लेस करते जाएंगे उतनी तेजी इसमें प्रोड्यूस होगी। दिस रिलेशन शोज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। Dear kids, there are few important points. It is the special case of oscillation. Along with a straight line between two extreme points, the path of the simple harmonic motion is constrained. Now here are, यहाँ पे आप समझ लें कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही मोशन है जो एक ही लीनियर मोशन पे डिस्प्लेस करने के बाद आप इसकी डायरेक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स भी होगा माइनस भी होगा। मींस मीन पोजीशन से ये कंप्रेशनल कंडीशन तक भी जा सकता है, एक्सटेंशन कंडीशन तक भी जा सकता है। तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। चाहे वो कंप्रेशन होगा चाहे वो एक्सटेंशन होगा, वो दोबारा मूव होके अपनी उसी सेम पोजीशन तक ही आएगा। द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन। तो पाथ जो ऑब्जेक्ट का है वो स्ट्रेट लाइन ही है, जैसे हमने स्प्रिंग के केस में एक मास अटैच किया हुआ है। देयर विल बी अ रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, और वही इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो मीन पोजीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम ही कहलाती है। तो जो डेरिवेशन हमें मिली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दैट शोज देयर इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच शोज acceleration always directed towards the mean position. So thank you very much, dear cadets. This is our today lecture about the simple harmonic motion. inshallah next lecture next topic के साथ फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।